تانیہ میں پیپلز پارٹی کے رہنما سابق MNA شہادت علی خان بلوچ انتقال کر گئے۔ علاقہ بھر سے سیاسی و سماجی شخصیات کا ان کی رہائش گاہ پر آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اسی حوالے سے گلریز اقبال بھٹی سے۔ جی گلریز بتائیے۔ جی بالکل، پاکستان پیپل پارٹی کے عظیم رہنما تاندلے والا کے سابق MNA شہادت علی خان انتقال کر گئے ہیں۔ اسی حوالے سے میں یہ بتاتا چلوں کہ عرصہ دراز سے علیل تھے اور فیصل آباد میں ان کا جو ہے وہ علاج جاری تھا۔ میں ان کی رہائش گاہ کے سامنے موجود ہوں۔ اہل علاقہ کی کثیر تعداد جو ہے ان کے یہاں پر موجود ہے اور ان کی جو میت ہے وہ لاہور سے یہاں پر تاندلے والا ان کے آبائی گھر جو ہے وہ پہنچ گئی ہے۔ اسی حوالے سے ان کے ساتھی وہ بھی موجود ہیں، عزیز و اقارب کی کثیر تعداد موجود ہے، ان سے بات کر لیتے۔ بتائیے گا شہادت علی خان صاحب کتنی دفعہ MNA رہ چکے ہیں اور کس پارٹی سے جو ہے وہ ان کا تعلق رہا ہے، کیا کہیں گے اس والے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خان شہادت علی خان کا نام کوئی چھپا ڈکا نہیں ہے۔ وہ ہمارے علاقے کے ماشاءاللہ بہت ہی منجے ہوئے سیاسی بزرگ رہنما تھے۔ کبھی انہوں نے پارٹی نہیں بدلی، جو بھی تار جڑاؤ آتے ہیں پارٹیوں پہ، لیکن انہوں نے کبھی اٹک جیل میں بھی رہے ہیں پھر بھی انہوں نے اپنی وفاداری نہیں بدلی۔ 3 بار MNA ہوئے ہیں۔ بے نظیر کے وہ بہت قریبی ساتھی تھے۔ بھٹو صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے بہت ٹائم گزارا ہے، وہاں پہ ہی MNA رہے ہیں بھٹو صاحب کے ساتھ بھی۔ تو جہاں تک میری نالج ہے یا میں دیکھتا آیا ہوں، کبھی انہوں نے نہ تو پیپلز پارٹی بدلی ہے اور نہ ہی اپنے اہل علاقہ کے ساتھ کوئی ایسی بات کی ہے جس سے ان کو دکھ ہو اہل علاقہ کا۔ یہ سب اہل علاقہ کھڑے ہیں، وہ سب ان سے پیار کرتے تھے، ہم سے بھی پیار کرتے تھے، ہمارے بزرگ تھے، ہمیں ان کے جانے کا بہت دکھ ہے۔ شہادت علی خان صاحب کے عزیز بھی موجود ہیں، پوری علاقے کی جو فضا ہے وہ سوگوار ہے۔ آپ بتائیے گا نماز جنازہ کب اور کہاں ادا کیا جائے گا؟ جی نماز جنازہ کل صبح دن 11 بجے نزد لودھی ہوٹل کے قریب ان کا نماز جنازہ ادا کیا جائے گا صبح دن 11 بجے۔ جی بالکل، جو ہے دن 11 بجے کل ان کا نماز جنازہ جو ہے یہاں پر جلا چوک میں لودھی ہوٹل کے قریب جو ہے وہ ادا کیا جائے گا اور اسی حوالے سے جو ہے وہ یہاں پر جو سیاسی سماجی اور ان کے شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے گلریز اقبال۔ اور ناظرین، مہنگائی نے عوام کو چاروں شانے چت کر دیا۔ ادارہ شماریات نے رپورٹ جاری کر دی۔ اپریل کے مقابلے مئی میں مہنگائی میں 1.58% اضافہ ہوا۔ مہنگائی کی شرح 38% رہی۔ اس دوران شہروں میں مہنگائی 1.50 اور دیہاتوں میں 1.69% بڑھی۔ آلو 17.2، گڑ 15.7، چکن 11.30، انڈے 7، آٹا 6.4، گوشت 4.6 اور دال ماش 3.6% مہنگی ہوئی۔ مہنگائی میں مسلسل اضافہ، ادارہ شماریات کی رپورٹ جاری۔ مئی میں مہنگائی کی شرح 38% ہو گئی۔ اپریل کے مقابلے مئی میں مہنگائی میں 1.58% اضافہ ہوا۔ مئی 2023 میں مہنگائی کی شرح 37.97% رہی۔ جولائی سے مئی تک مہنگائی کی شرح 29.16% رہی۔ مئی میں شہروں میں مہنگائی 1.50 اور دیہاتوں میں 1.69% بڑھی۔ مئی میں آلو 17.2، گڑ 15۔ اور ناظرین، اوگرا نے LPG کی قیمت میں 37 روپے فی کلو کمی کر دی۔ امپورٹ اور لوکل LPG کی قیمت میں 197 روپے فی کلو مقرر۔ سستی LPG کہاں سے ملے گی؟ فیصل آباد کے شہری اب بھی 250 روپے کلو میں خریدنے پر مجبور۔ جنگ میں بھی سستی LPG کے ثمرات شہریوں تک نہ پہنچ سکے۔ LPG کی قیمت میں بڑی کمی۔ اوگرا کا LPG کی قیمت میں 37 روپے کلو کمی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ ملک بھر میں لوکل اور امپورٹ LPG کی قیمت 197 روپے کلو مقرر۔ گھریلو سلنڈر کی قیمت 438، کمرشل سلنڈر کی قیمت 1686 روپے کم۔ گھریلو سلنڈر 2322، کمرشل سلنڈر 8933 روپے کا ہو گیا۔ LPG کی قیمت میں 37 روپے کلو کمی ہو تو گئی، لیکن LPG مافیا نے سستی نہ کی۔ فیصل آباد کے شہری اب بھی مہنگی گیس خریدنے پر مجبور۔ اوگرا نوٹیفیکیشن کے مطابق LPG کی قیمت 197 روپے فی کلو، جبکہ دکاندار 250 روپے فی کلو فروخت کر رہے ہیں۔ جنگ میں بھی سستی LPG کے ثمرات شہریوں تک نہ پہنچ سکے۔ LPG سستی تو ہوئی، لیکن رکشوں کا کرایہ وہیں کا وہیں۔ رکشہ ڈرائیور کا ابھی بھی LPG مہنگی ملنے کا شکوہ۔ کہتے ہیں مہنگائی کم ہوئی تو کرایہ بھی کم کر دیں گے۔ LP سستی ہوئی گئی ہے، وہ نال سانو کی ہے ٹائر مہنگے، اسپیئر پارٹ مہنگا ہے، اور اشیاء ہیں جو مہنگی ہیں، ہمیں وہ اسی ریٹ پہ مل رہے ہیں۔ بہت مہنگی ہے، گیس بھی ابھی مہنگی ہے۔ اگر پیچھے سستی ہو بھی گئی ہے تو یہاں تو ابھی نہیں پہنچی نا۔ اگر پہنچی ہے تو دکاندار کا اپنا ریٹ ہے، کرایہ پہ ہم کیسے کریں؟ کرایہ ہم کم نہیں کر سکتے۔ جب ہر چیز کم ہو جائے گی تو کرایہ
किराया भी कम हो जाएगा। रिक्शा ड्राइवरों ने हुकूमत से रिक्शों का दीगर सामान भी सस्ता करने का मुतालबा कर दिया। पेट्रोल की कीमत बढ़े तो किराया बढ़े, कमी पर खामोशी क्यों? 15 रोज में फी लीटर पेट्रोल 20 तो डीजल की कीमत 35 रुपए तक पहुंच गई, मगर मुसाफिर गाड़ियों के किराए जूं के तू। फैसलाबाद डिवीजन में बसों पर सफर करने वाले मुसाफिरों की अक्सरियत ने ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के चुप साधने को मुजरिमाना खामोशी करार दे दिया। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने वाले मुस्तफीद न हो सके। वफाकी शहर मुतालिका इदारों की कारकर्दगी पर फट पड़े। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद किराए में फौरी इजाफा कर दिया जाता है, लेकिन हालिया कमी के बाद किरायों में कोई कमी नहीं की गई। ट्रांसपोर्टर्स मन माने किराए वसूल कर रहे हैं। हुकाम किरायों में कमी के लिए इकदाम करें। अगे 400 लेंदे सी, हुण 350 350 रुपये कम किए। हाँ जी, कल असा 250 रुपये भरते आया, हूँ जेड़ा ना 300 आदे आ। जंग में भी बेलगाम महंगाई में पिस्ते गरीब मुसाफिर बिलबिला उठे। लोकल रूट्स पर किराए में 1 रुपए की कमी न करने का शिकवा कर दिया। कहते हैं फी लीटर पेट्रोल 15 दिन में 20, डीजल 35 रुपए तक नीचे आ गया, मगर किरायों में 1 रुपए की कमी भी नहीं की गई। जंग से फैसलाबाद का किराया अब भी 250 रुपए से 300 रुपए है। लाहौर का किराया 1150 से 1200, गुजरांवाला का किराया 900 से 1100 रुपए वसूल किया जा रहा है। मुल्तान का किराया 850 से 900, लिया का किराया 750 से 700 रुपए लिया जा रहा है। रावलपिंडी का किराया 1650 रुपए से 1550 रुपए के दरमियान है। कोई किराए कम नहीं हुए, सेम उनके रेट्स हैं। अभी मैंने भेजा बंडल तो उन्होंने मेरे से 250-300 चार्ज कर लिए हैं। अगर जो रिलीफ आवाम को ही नहीं मिल रहा तो फिर उसका फ़ायदा ही नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि इसके खिलाफ कोई एक्शन ले ताकि जो रिलीफ है वो आवाम तक उसको पहुंच सके। चिन्योट में भी ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वाज़ेह कमी के बावजूद आवाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी के समरात से महरूम। महकमा ट्रांसपोर्ट और जिला इंतजामिया ऐलानात के बावजूद ट्रांसपोर्टरों को रोकने में नाकाम हो गई। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं दीगर अखराजात बहुत ज्यादा किरायों में कमी नहीं कर सकते। मुसाफिरों का कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स को किराया नामा गाड़ियों के अंदर अवेजा करने और उस पर अमल दरामद करवाने का पाबंद बनाया जाए ताकि आवाम को किरायों की मद में रिलीफ मिल सके। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के खाम माल डाइज एंड केमिकल की दरामद में डॉलर एक्सचेंज रेट रुकावट बन गया। डॉलर की गैर मुस्तहकम पोजीशन ने दरामदी सामान में मुश्किलात खड़ी कर दी। डाइज एंड केमिकल एसोसिएशन इत्तफाक ग्रुप के अहदेदार कहते हैं दरामद के लिए ओपन मार्केट में डॉलर खरीद 300 रुपए से ऊपर, जबकि फरोख्त के लिए मकामी इंटरबैंक पर देना मुमकिन नहीं। इम्पोर्टर्स को टेक्सटाइल खाम माल का अहम जुज डाइज एंड केमिकल्स की दरामद में मुश्किलात। डॉलर के उतार चढ़ाव ने दरामदी सामान का हसूल नामुमकिन कर दिया। फिक्स रेट ना होने से इम्पोर्टर्स रेट लेने और देने से कासर नजर आने लगे। इम्पोर्टर्स को लेटर ऑफ क्रेडिट के हसूल के लिए भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ओपन मार्केट रेट बेकाबू, जबकि इंटर बैंक में डॉलर 285 पर आ गया। डाइज एंड केमिकल्स एसोसिएशन इत्तफाक ग्रुप सदर मियां जाहिद अयूब और जनरल सेक्रेटरी कैसर चुगताई की सिटी 41 से गुफ्तगू कहते हैं मार्केट और इंटर बैंक में डॉलर की कीमत के फर्क और गैर मुस्तहकम सूरत हाल ने मार्केट में कारोबार को रोक दिया है। बैंक रेट बताता है 285, 286 जितना भी है, और एक्चुअली जो डॉलर का रेट है वो 325 के करीब है, 330 है। और जब हम कस्टमर को चीज़ बेचते हैं तो वो कहता है जी कि ये तो रेट जो है वो 285 है, आप किस तरह इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए खुदारा इस पे जो है ना वो ठोस पॉलिसी बनाएं, इसको वाजिया करें, एक ही रेट करें। 2-3 रुपए का डिफरेंस तो आता था पहले भी, वो काबिल कबूल है। इतनी ज़्यादा प्राइसेस जो है डॉलर की जो है वो फ्लक्चुएट हुई हैं। अभी होता क्या है कि प्राइस दी जाती है 285 के हिसाब से, जबकि चीज़ खरीदी जाती है 330, 320। इम्पोर्टर्स कहते हैं डॉलर की कीमत के उतार चढ़ाव ने गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर दी है। महंगा सामान मंगवा लें तो बाद की सूरत हाल क्या हो कोई नहीं जानता। सनतकार मजीद नुकसान बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखते। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। मुआशी सुस्त रवि का बड़ा सबूत, निजी शोबे को बैंकों से कर्ज की शरह में 98% कमी। सीनियर नायब सदर FCCI डॉक्टर सजाद अरशद की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहते हैं 21% की बुलंद तरीन शरह सूद ने लोगों का एतमाद छीन लिया है। तफसीलात जानते हैं शराज पट की रिपोर्ट में। रवा माली साल के दौरान निजी शोबे को बैंकों से कर्ज लेने में 98% की कमी हुई है, जिससे मुआशी सुस्त रवि का इशारा मिलता है। सीनियर नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डॉक्टर सज्जाद अरशद का कहना था कि गुज़िश्ता साल निजी शोबे ने बैंकों से 14 खरब 14 अरब रुपए का कर्जा लिया, जो इस साल महज 27 अरब 90 करोड़ रुपए रह गया है। बहुत ज्यादा स्क्वीज हो चुकी है क्योंकि 26% पे लोगों के लिए काम करना नामुमकिन है, और अभी 98% श्रिंक कर गई है स्टेट बैंक के स्टेटमेंट के मुताबिक, और जो एग्जैक्ट फिगर है वो 27.9
बिलियन है इस पीरियड में, जुलाई से लेके 19 मई तक। बैंकों से कर्ज लेने की शरह में कमी की बड़ी वजह 21% शरह सूद है। डॉक्टर सज्जाद अरशद का कहना था कि निजी शोबे की जानिब से कर्ज लेने की शरह में कमी मईशत कमजोर होने का सबूत है। हर चीज श्रिंक हो चुकी है, उस बिजली के रेट बढ़ चुके हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस सारा इंक्रीज हो गया है। ये पॉसिबल नहीं है कि इतने इस सिलसिले में काम कर सकें, इतने हाई काइबर पे आप इंटरेस्ट पे पैसे लेके काम कर सकें। सीनियर नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर डॉक्टर सज्जाद अरशद ने कहा कि ये सूरत हाल लम्हा फिक्रिया है। 21% की बुलंद तरीन शरह सूद ने लोगों से एतमाद छीन लिया है। दूसरी जानिब 36% की गैर मामूली महंगाई में कारोबार चलाने का भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। कैमरा टीम के साथ शिराज बट, सिटी 41, फैसलाबाद। तारिक महमूद गोंदल असिस्टेंट कमिश्नर भवाना तैनात। तारिक महमूद गोंदल को शकीब सरवर की जगह तैनात किया गया। शकीब सरवर का तबादला 3 रोज कबल भवाना से लियाकतपुर हुआ था। हुकूमत पंजाब ने तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तारिक महमूद गोंदल असिस्टेंट कमिश्नर भवाना तैनात हो चुके हैं। तारिक महमूद गोंदल को शकीब सरवर की जगह तैनात किया गया है। शकीब सरवर का तबादला 3 रोज कबल भवाना से लियाकतपुर हुआ था। हुकूमत पंजाब ने तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सरकारी इदारों के रिफंड्स की वापसी में सनतकार परेशानी का शिकार। सूबाई सतह पर वसूल प्रोविंशियल टैक्स से गुज़िश्ता 10 साल से रिफंड न किया जा सका। PRA अदायगी की जिम्मेदारी FBR पर डालने लगा। टैक्स गुजारों का कहना था कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने 2013 में खदमात पर सेल्स टैक्स लागू किया था। अशिया की सप्लाई, फैक्ट्रियों में ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल इंपोर्ट और दीगर सर्विसेज पर प्रोविंशियल टैक्स लाया जाता है। सरकारी इदारों से रिफंड्स की वापसी में सनतकार परेशानी का शिकार। सूबाई सतह पर वसूल प्रोविंशियल टैक्स गुज़िश्ता 10 साल से रिफंड न किया जा सका। PRA अदायगी की जिम्मेदारी FBR पर डालने लगा। टैक्स गुजारों का कहना था पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने 2013 में खदमात पर सेल्स टैक्स लागू किया था। अशिया की सप्लाई, फैक्ट्रियों में ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल इंपोर्ट और दीगर सर्विसेज पर प्रोविंशियल टैक्स लिया जाता है। तहम पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी और FBR ने अभी तक 25 अरब रुपए के रिफंड अदा नहीं किए। टैक्स लागू होने से अब तक 1 पैसा भी रिफंड नहीं किया गया, न ही कोई मैकेनिज्म बनाया गया। टैक्स गुजारों ने FBR, PRA के पास फंसे हुए अरबों रुपए के रिफंड जल्द जारी कराने का मुतालबा किया। बैरून मुल्क से आने वाले तरसीलात ज़र पर भारी टैक्सेस की शिकायत। FBR मुबैना तौर पर हकायक के मुनाफी टैक्सेस और जुर्माने आयद करने लगा। मुतासरा शहरियों ने विफाकी टैक्स मुहतसिब से रुजू कर लिया। शहरियों का कहना था FBR अफसरान कवानीन के बरक्स शहरियों को टैक्स और जुर्माने आयद कर रहे हैं। बैरून मुल्क से आने वाली तरसीलात ज़र के लिए 4 शराइत पूरी करना जरूरी है। रकम का बैरून मुल्क से बैंकिंग चैनल्स के जरिए पाकिस्तान आना जरूरी है। कानून के मुताबिक 1 साल के दौरान 50 लाख रुपए तक गैर मुल्की तरसीलात पर टैक्स आयद नहीं होता। फूड अथॉरिटी टीम ने चिनियोट में गंदे पानी से उगाई जाने वाली सब्जियों पर हल चलवा दिया। 8 किनाल रकबे पर सीवरेज और केमिकल ज़दा पानी से सब्जियां उगाई गई थीं। तफसीलात बाबर मुनीर की इस रिपोर्ट में जानिए। सिटी 41 की खबर पर पंजाब फूड अथॉरिटी का सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ एक्शन। चिनियोट में फूड अथॉरिटी टीम ने दुराने मुआयना गंदे पानी से 8 किनाल रकबे पर काश्त होने वाली सब्जियों पर हल चलवा दिए। 8 किनाल रकबे पर सीवरेज और केमिकल ज़दा पानी से सब्जियां उगाई गई थी। सीवरेज मिले पानी से गोभी, भिंडी, सब्ज तोरी, पालक, टिंडे, कद्दू, बैंगन और दीगर सब्जियां अरसा-दराज से काश्त की जा रही थी। जहरीले पानी से तैयार होने वाली सब्जियों से शहरी हेपेटाइटिस और दीगर बीमारियों में मुब्तला हो रहे थे, जिस पर सिटी 41 की जानिब से निशानदेही की गई। कैमरामैन एलिज़ाबेथ चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिनियोट। धान की पैदावार के हवाले से अहम खबर। ज़राई माहिरीन ने बेहतर पैदावार के लिए 10 जून तक पनीरी काश्त करने की हिदायत कर दी। कहते हैं मौसम से इस्तेफादा करने से सूरत हाल मजीद बेहतर बनाई जा सकती है। तफसीलात जानिए अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट में। ज़राई माहिरीन ने धान की बेहतर पैदावार के लिए 10 जून तक पनीरी काश्त करने की हिदायत कर दी। साइंटिफिक ऑफिसर डॉक्टर हाफिज नवीद रमजान का कहना था कि 25 मई से पहले पनीरी काश्त करने पर पाबंदी है, क्योंकि इससे बीमारी जन्म लेती है। इस वक्त पनीरी काश्त हो रही है, जो कि 10 जून तक जारी रहेगी। इसके बाद जब पनीरी 25 दिन की हो जाएगी तो उसकी काश्त शुरू कर दी जाएगी। पहली बात तो ये है कि 20 मई से पहले किसी भी किस्म की अपने पनीरी काश्त नहीं करनी है। मोटी अक़साम वो आपने 20 मई से 7 जून तक उनकी पनीरी काश्त करनी है। पनीरी काश्त करने के लिए 3 मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। कद्दू का तरीका है, खुश्क तरीका है और राब का तरीका है। ज़राई साइंसदानों का कहना था कि धान के काश्तकार बेहतर फसल के हसूल के लिए सिर्फ मंजूर शुदा अक़साम की काश्त को यकीनी बनाएं। खेत में पनीरी काश्त करने से कबल 2 दफ़ा हल चलाया जाए और फिर उसे पनीरी होने से पहले पानी से भर दिया जाए और खड़े पानी में दोहरा हल चलाया जाए और सागा दिया जाए। माहिरीन कहते हैं पनीरी में जड़ी बूटी को ना होने दिया जाए। जैसे गंदम लगाई जाती है, जैसे और तरीकों के लिए ज़मीन तैयार की जाती है, इसी तरह ज़मीन तैयार करके खुश्क तरीके से आप लगाते हैं। इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है पनीरी के लिए,
اور اگر آپ کدو کے طریقے سے پنیری لگاتے ہیں تو اس کے لیے 25 سے 35 دن تک جو ہے نا پنیری وہ آگے منتقلی کے لیے ریڈی ہوتی ہے۔ جون کے آخر میں لگائی جانے والی دھان بہتر پیداوار حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ کیمرہ مین محمد وقاص کے ساتھ عبدالرحمان، فیصل آباد۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے زراعت کا شعبہ شدید متاثر۔ ملک میں ماحول اور آب و ہوا سے ہم آہنگ فصلوں کی اقسام تیار کرنا وقت کی اہم ضرورت بن گیا۔ مزید جانتے ہیں عبدالرحمان کی رپورٹ میں۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے سبزیاں، پھل اور فصلیں متاثر ہونے لگیں۔ پرنسپل سائنٹسٹ ایوب ریسرچ ڈاکٹر محمد رفیق کہتے ہیں اب موسم کی کوئی بھی پیشین گوئی کرنا ممکن نہیں رہا۔ پرنسپل سائنٹسٹ ایوب ریسرچ ڈاکٹر محمد رفیق کہتے ہیں اب موسم کی کوئی بھی پیشین گوئی کرنا ممکن نہیں رہا۔ کسانوں کو از خود ہی محتاط رہنا ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو پھل ہیں، پھلدار درخت ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ فروٹ بہت زیادہ ہے، لیکن یہ جو آندھیاں آ رہی ہیں ان کی وجہ سے ہمیں نقصان کا خاطر خواہ احتمال ہے۔ تو کسانوں کو چاہیے کہ اگر اس دفعہ تک نہیں کیا گیا تو جو اپنے ان کے باغات ہیں ان کے ارد گرد کچھ اس طرح کی باڑیں لگائیں تاکہ آندھیوں سے بچا جا سکے۔ زرعی ماہرین نے کاشتکاروں کو فصلوں پر زیادہ توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے موسم میں جڑی بوٹیوں اور بیماریوں کے حملوں کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ کاشتکاروں کو ہر طرح کے موسم کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو تیار کرنا ہوگا۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے فصلوں کا پیریڈ بھی متاثر ہو رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہونے والے ممالک میں ٹاپ پر ہے۔ یہاں پر نئے مدافعتی بیج بھی تیار کیے جا رہے ہیں۔ چونکہ اگر موسم ٹھنڈا رہے گا تو انسیکٹ کا اٹیک زیادہ ہوتا ہے۔ جہاں تک جڑی بوٹیوں کا تعلق ہے تو اسے بھی وقت پہ چاہیے کہ انہیں نہ تلف کیا جائے اور اس کے لیے محکمانہ سفارشات پہ کما حقہ عمل کیا جائے۔ بے وقت کی بارشیں، طویل خشک سالی اور شدید گرمی سے مقامی آبادی کا ذریعہ معاش زراعت بری طرح متاثر ہو سکتا ہے۔ کسانوں کے لیے موسمیاتی تبدیلیوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر کاشتکاری کرنا وقت کی اہم ضرورت بن گیا ہے۔ کیمرہ مین محمد وقاص کے ساتھ عبدالرحمان، فیصل آباد۔